अपने घर Good evening, all of you. Am I audible, visible? Hello, am I audible? Yes, sir. तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में, जिसका नाम है क्या नाम? अपने घर जिसका नाम है जी परसेंटेज क्लास 2. So I hope you guys had revised the concepts, the tricks, the formulas, the ways we had discussed in the first class. And mind my words, believe my words. If you revise, only things will be easy for you. If you don't revise, things will be difficult. Got my point? This is the timetable, 20 September, current affairs, defense update. GK 3 बजे, 5 बजे English, 5 बजे English. चलिए. So some questions we had discussed, some more questions we have to discuss too. Chalo. Raghav spends 80% of his income. If his income is increased by 12% and the savings is decreased by 10%, what is the percentage change in the expenditure? सुनना मेरे. Income हमेशा कैसे होती है? एक तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, it is my humble request to all of you to keep your mic on. इस ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में. आप सभी से मेरी दरखास्त है कि आप अपने माइक को म्यूट करें. ऐसे बोलते हैं हिंदी. तो हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों में बोल दिया. So basically, what is the basic formula of income? How you define the income? Income is basically expenditure plus saving. You all know this basic concept. Income क्या होती है? Expenditure plus saving. Now see, Raghav spent 80% of his income. Suppose his income is 100 rupees. 80% क्या हो जाएगा? Expenditure, that is 80 रुपए spend कर रहा है, 20 रुपए बचा ले रहा है. ये उसका context है. If his income increases by 12%, income has increased by 12%. So what is the 12% of 100? That is 12. So now his new income is 112. And the savings decreased by 10%. Earlier saving was 20 rupees. Now decreased by 10%. तो 20 रुपए का 10% कितना हो जाएगा? 2 रुपए. तो अब वो कितने रुपए बचा रहा है? 20 में से 2 गए 18 रुपए. तो अब उसकी न्यू इनकम है this one 112, न्यू सेविंग्स हो गई 118. तो न्यू इनकम कितनी हो जाएगी? 112 minus 80. This will be your new income. That is 94. Simple. So new income is 94. What is the percentage change in his expenditure? Sorry, expenditure is 90. So it is increased by 14. So percentage increase in the expenditure is what? 14 upon 80 into 100. तो अब इसको काटोगे तो 20 से काटोगे 4 पे कटेगा, 20 से काटोगे 5 पे कटेगा, 2 से काटोगे तो ये 2 पर, 2 से काटोगे 7 पर, 7 पंजे 35, 35 का हाफ करोगे तो 17.5%. This will be a percentage change in the expenditure. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. तो कोई भी लेट कर लो, ससान. तुम लोग इतने बड़े हो रहे हो, you all are graduate. तुम लोग अपने माइक नहीं कंट्रोल कर पाते. क्या कर रहे हो तुम लोगों को? पता है सब लोग को सुनाई देता है तुम्हारे ऐसे क्या क्या वॉइसेस आ रही. कंट्रोल रखा करो इस. Some of the salaries of human beings, this A spends 95% of his salary and B spends 80% of his salary. A 95% spend करता है and B spends 80% of his salary. If the savings are same, देखो किसी भी सैलरी और सेविंग्स का क्या कॉम्बिनेशन बनता है, जरा उस पर हम लोग नजर मारते हैं.
आप लोगों को ये तो बात पता चलेगी कि इनकम कैसे बनती है, सैलरी प्लस सेविंग्स, ठीक है जी। 95% उसकी अगर स्पेंड कर देता है तो 5% वो सेव कर लेता है। ए की बात कर, ए सेव्स 5% ऑफ हिज सैलरी। नाउ कम टू द बी, बी स्पेंड्स 80%, सो हाउ मच ही सेव्स, 20% ही सेव्स। सेविंग्स दोनों की सेम, सेविंग्स आर saving of A is equals to saving of, what is this going on nonsense? What you guys are doing? क्या कर रहे हो तुम लोग? बार बार इसको बार बार क्यों बोलना पड़ रहा तुम लोगों को? चलो, ए की मान लो सैलरी ए थी, उसका 5% वो सेव कर रहा है, ही सेव्स 5% ऑफ हिज सैलरी। कम टू द बी, सपोज बी की सैलरी बी थी एंड ही सेव्स 20% ऑफ हिज सैलरी, क्योंकि सेविंग्स तो दोनों तरफ सेम ही होनी है। सेविंग ऑफ ए इज इक्वल टू सेविंग ऑफ, दिस गॉट कैंसल आउट, 5 1 is 5, 5 4 is 20, a is equals to 4. Now the combined salaries of A and B is here. A plus B is what? 43,000. A is what? 4B. So here you will get 5B. That is B is equals to 43 upon 5. 43,000 upon 5. 5 8 is 40, 5 6 is 30, 8600 आ गया। B की सैलरी आ गई आप लोगों की 8600। A की सैलरी इज 4 times of it, 4 times of 8600. So simple, 4 6 are 24, 4 8 are 32, 32 or 234. This will be the salary of A. Next, of the total population in a certain village, 42% are of men and 24% of women are married. Find the percentage of total population who are married. आपको टोटल पॉपुलेशन की परसेंटेज बतानी है जो मैरिड। For in some village there are some men, out of which 42% are married, and in some village there are some women, out of which 24% are married. So it's a very common sense question. क्यों? Married people तो सेम ही होंगे। How? अगर मैं तुम लोगों से कहता हूं, अगर मैं तुम लोगों से ये कहता हूं वो वीडियोस अपलोड नहीं हुई, उसको मैं देखता हूँ। The last class recorded video will be uploaded. Don't worry. All the recorded video will be uploaded. I will check what will be the technical issue. ठीक है, वो करवा देंगे आज। पहले इस पे आओ। तो देखो सिंपल चीज मैं तुम्हें बता दूं। If I say that there are 10 boys are married, so they must be married to 10 girls. Or I say 10 men are married, so it would be they are married to 10. So now here check. अब देखो, सपोज किसी विलेज में M men थे और W वुमेन, 42% ऑफ मेन में से 42%, ये इक्वल होंगे ऑफ कोर्स किसके, जो 24% ऑफ वुमेन, उसके बराबर होगा पॉसिबल। सो 42 अपॉन 100 into M, 24 upon 100 into W. तो बस कैंसिल कर दो, वही M upon W निकाल लो, सिंपल इजी। तो 24 upon 42, तो 6 से काटोगे तो 6 4 is 24, 6 7 is 42, so 4 upon 7। अब सुनना, यहाँ से आगे अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करेंगे। We will try to make the our calculation easy. Men is to women का रेशियो आ रहा है 4:7। I will take it 400 and 700. Why? To make my calculation easy. That is my purpose. Why? 42% of men are married. So I will find 42% of 400. Similarly, 24% of women are married. So I will find 24% of 700. 4 2s are 8, 4 4s are 16. So 168 men are married. And 24 7s is also 168, so 168 women are married. So basically, how much is the total population married percentage?
तो 160 मैन हो गए, 160 वुमेन हो गए, तो 168 प्लस 168 डबल ऑफ 168 टोटल। How much is the total population? That is 400, that is 1100. This is your total population. So 2 सिंपल यहाँ पे कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी, कटेगा भी नहीं ये क्योंकि, तो आपको करनी पड़ेगी 2 8 16, 2 6 12 प्लस 1 13, तो 2 प्लस 1 3, 11 से काटना शुरू करोगे तो 30.5 समथिंग हो जाता है, 30.5%। आप चाहते तो यहाँ से वैसे सिंपल भी कर सकते थे कि 40% ऑफ 4, 40 और 24% ऑफ 7, वो सब भी करते, उससे कैलकुलेशन मुश्किल पड़ती है। इस पॉइंट को नोट कर लो। Whenever you want to make your calculation easy, take the things in the multiples of 10 or 100. That will give you simple terms and it will make your calculation easy. Next. A obtained 10% more marks than B. B obtained 20% more marks than C. A obtained 272 more marks than C. Find the marks obtained by C. Sorry. देखो कुछ भी वैल्यूज मान लो, उसी से आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी ना। चेक हियर, मैं एक सिंपल सी से शुरुआत करता हूं। आई विल स्टार्ट फ्रॉम सी। सपोज सी की जो मार्क्स थे वो 100 आए। बी ऑब्टेन 20% मोर। 20% मोर मीन्स प्लस 20%, दैट इज 100 का 20% कितना हो गया 20, दैट इज बी इज 120। Now, A obtained 10% more than B. तो अब इसमें 10% ऐड कर दो। So 120 का 10% कितना हो गया 12. So it will be 132. A आ गया 130. A obtained 272 more marks than C. अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। ये हमारी वैल्यू लेट करी, हमारी वैल्यूज के हिसाब से A के 32 मार्क्स ज्यादा आए हैं C से, हमारी वैल्यूज के हिसाब से। बट ये 32 तो नहीं है, या व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन 272। सो 32 की वैल्यू क्या होगी 272। वैल्यू ऑफ 32 इज 270। व्हाट वी हैव टू फाइंड, तो 1 की वैल्यू क्या हो गई 272 अपॉन 32। हमें वैल्यू निकालने किसकी है, फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सी। हमें 100 की वैल्यू निकालनी, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 272 divided by 32 into simple. Just let me brief again. I have taken a value of C is 100. Then I have increased accordingly given in the question. 32 is the marks which I am getting according to my values, but 32 is not the real value. 32 is given and equal to the 270. I have to find the value of, बस काट लो। इसको 4 से काटोगे तो 4 6 24, 4 8 32 और 4 8 32। 4 से काटोगे इसको तो ये 2 पे कट जाएगा, इसको 4 से काटोगे तो ये 25 पे कट जाएगा, इसको 2 से काटोगे तो ये 34 पे कट जाएगा। 34 into 25 करना है। अगर 34 को ना ऐसे लिख लो 30 plus 4, इससे कैलकुलेशन विल बी इजी। 30 plus 3 कितना हो जाएगा 7500, 25 into 3 तो सिंपल आ जाएगा 24 into 100, 24 plus 4 पे आ जाएगा 8। This will be answer. So it is the best technique to let some values. Next, Vishal requires 40% to marks to pass on. If he gets 185 marks for short of 15 marks, what was the maximum marks he could have gotten? उसको ज्यादा से ज्यादा कितने मार्क्स मिल सकते? Vishal requires 40% to pass. Suppose the maximum marks he can get X. तो सिंपल है, देखो क्या होता है कि आप एग्जाम भी देते हो तो आप पे 100 200 ऐसे कुछ भी आते हैं आपके मैक्सिमम, तो अब मान लो वो X है, उसके 40% पे आप पास हो जाओ। सो व्हाट इज द पासिंग मार्क्स 40% ऑफ X।
अब इसके पासिंग मार्क्स का हिसाब देखो आप, कैलकुलेट हियर, he get it 185 marks, ठीक है, he get 185 marks and fall short by 15. That is, if 185 plus 15 he got, he would be passed. So 185 plus 15, that is 200 marks. If you got 200 marks, he would have passed. So simple. अब यहाँ पे कर लो 40% होता है 2/5, 100, x would be 5. Chalo, simple. Passing marks. In wherever there are such questions, married, passing marks, equal people, savings, whenever the two things are given same or equal, then you have to just compare. Just like here. Fresh fruits contain 68% of water and dry fruits contain 20% of water. How much dry fruits can be obtained from 100 kg of fresh fruits? Just see. आप लोगों ने फ्रूट तो देखा ही हो, तुम सब है? इतने तो तुम सब लोग वो पढ़े लिखे। किसी भी फ्रूट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है उसका जो ड्राई कंटेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पल्प, और एक उसके अंदर जितना भी वाटर होता है। आप किसी भी फ्रूट को ले लो, चाहो तो वाटरमेलन, मैंगो, किसी को भी आप ले लो, सबके अंदर थोड़ा सा वाटर या कह लो उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट और बाकी उसका पल्प, ये होता ही होता है। अब दो तरीके के फ्रूट है आप लोगों के पास, ड्राई फ्रूट पहला और एक है फ्रेश फ्रूट। अब सुनना इसमें, फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर, दैट मीन्स out of the total 100% fruit, 68% is water. That means pulp is 32%. That is, in the first fruit, 32% pulp is there. Similarly, if we compare for the dry fruit, it contains 20% water. There would be 80% pulp. Same concept. That the fruit is 100%, water is 20%, and pulp is 80%. अब क्वेश्चन इसमें आपको करना क्या होता है, what basically you have to remember or understand. देखो, आप चाहे ड्राई फ्रूट पकड़ लो चाहे आप फ्रेश फ्रूट पकड़ लो, देखो फ्रेश फ्रूट के अंदर ना जब मॉइस्चर कंटेंट ऐड हो जाता है तो वो आपको भरा भरा लगता है, it looks like a full fresh one. Why? Because it contains water. But the pulp of the fruit, be it fresh, be it dry, it remains same. Pulp, outside content, it remains same, be it fresh fruit or dry fruit. So pulp is same of both the fruits. You have to find how much dry fruit can be obtained from 100 kg of fresh fruit. तो फ्रेश फ्रूट का पल्प बराबर होगा ड्राई फ्रूट के पल्प आपको कंपेयर कर, आपका अगर 100 kg फ्रेश फ्रूट है, 100 kg फ्रेश फ्रूट है, उसमें 32% पल्प है. फ्रेश फ्रूट कंटेन, if there's a 100 kg, it contains 32% pulp. How much? Suppose X dry fruit you have, out of which कितना पल्प मिलेगा आपको? 80% पल्प. 80% आपको पल्प मिलेगा. So you have to just compare the pulp. इस कितना किलो लूं जिसमें से 80% पल्प इस पल्प के बराबर. So just simple compare करना है, सब बाकी तो सब कर ही लिया. तो 100 x ये सब जब आप कैलकुलेशन करना, सब फास्ट करना, वहां पर डू इट वेरी फास्ट इन द एग्जाम्स. ये सब बहुत तेजी से, मतलब ये 100 मत लिखना, बस लिखना क्या है मैं आपको बता दूं. इसको काट लो, 4 पे कट जाएगा 20 से, ये 4 पर, ये 5 पर, यहाँ पे 5 into 32. इनफैक्ट और तेजी से काटो, 5 से 8 पे कट जाएगा, 5 से 40. बस इतना ही लिखना आपको, बस ये इक्वेशन लिखनी है आपको एग्जाम में. दिस वन, ऑल अदर थिंग्स यू हैव टू डू इट इन दिस थिंग, दिस थिंग, दिस थिंग, this thing, all you just have to do it. पहले स्टेप में बस ये, बस एक लाइन में क्वेश्चन आपको.
ठीक है ना, दैट्स व्हाई द एग्जामिनर आल्सो डज नॉट गिव यू सो मच रफ पेपर बिकॉज ही नो कि इतने में हो जाएगा। तो जो वहाँ क्वेश्चन लिखा होता है ना, जितने में 2-3 लाइन और ऑप्शन, उतने में ही वो इतने से स्पेस में करना होता है, वो इतने से स्पेस में करना होता है वो, क्योंकि वो बस एक लाइन में 2 लाइन, हाँ ऑफकोर्स कुछ होते हैं जो जिसमें करना पड़ता है, वो इसीलिए वो थोड़ा सा रफ होते हैं। ठीक है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो समझनी पड़ेगी। Salesman is allowed 16% commission on the total sales made by him and a bonus of 3% on the sales over this if the total earnings of a salesman is rupees this point the total sales. तो बेसिकली हो क्या रहा है जरा देखना, वो जो उसकी जो इनकम है ना, वो 2 तरीके से होती है, इट इज इन 2 वेज, कमीशन प्लस बोनस। बोनस ही गॉट 3% ऑन दिस, तो बोनस कितना है उसका ये बताओ। 3% ऑफ 185 रुपीज, तो कर लो बस, कितना जाएगा, 5 is a 15, 5 3 is a 24, 15 से प्लस 5 और 3 is a 3 plus 2 555, ये उसका बोनस है। सुनना बहुत ध्यान से, इफ द टोटल अर्निंग ऑफ अ सेल्समैन इज रुपीज दिस, उसकी अर्निंग इतनी हो चुकी, अब इसमें बोनस भी ऐड करूंगा, अब देखो ये कितनी होगी, तो सिंपल 5 5 10, 9 और 1 10, 5 15, 5 5 10 और 1 11 और 165, ये हो गई उसकी अर्निंग। अब सुनना, इसको कैसे समझना है, ये उसकी अर्निंग है। अब अर्निंग कैसे होगी, इट हैज टू अकर इन 2 वेज, 16% कमीशन एंड 3% बोनस, इट अकर्स इन दिस। तो टोटल कितनी हो गई, 19%। सो 19% ऑफ टोटल सेल सपोज एक्स इज हिज अर्निंग। अब अर्निंग हम लोगों को पता चल चुकी है, टोटल अर्निंग जो उसने वैसे कमाई थी, कमीशन से वो इतने रुपए कमाए थे, बोनस से उसने इतने कमा लिए, तो टोटल उसने कमाए 16,150। बट ये आया कैसे कि कुछ सेल हुई होगी, उसके कंपोनेंट्स 19%, 16 और 3 करके 19% सो नाउ जस्ट यू हैव टू फाइंड x, सो 1615 into 100 डिवाइड बाय, बस सॉल्व करोगे इसको जाएगा यार हल्का सा, 19 से काटना शुरू करोगे जब इसको, तो 19 से काटोगे तो 19 152, 152 और फिर 9 पे आ जाएगा ना, 850 पे। ये उसके टोटल, ठीक है जी, सिंपल, बस आपको समझना है कि कहां से आ रहा हेलो है। एक्स रही होगी दैट इज 19%। हाँ जी पूछिए, आप पूछिए बताओ। सर, रिपीट योर क्वेश्चन। हाँ, repeat my question. Question is, a salesman is allowed 16% commission on the total sales. There will be some total sales, suppose X, जिसके ऊपर उसको 16% commission मिलता है, and the bonus is 3%. So total earning is 19%. 19% of X, जो हमें पता नहीं, हमें निकालना, ये अर्निंग हो गई उसकी। अर्निंग कैसे हो रही है कि एक तो ये कमीशन से पैसे है और ये बोनस के पैसे। ठीक है जी, पैसे आपको दे दिए, कहा सेल्स बताओ बस, और कुछ। चलिए, सो ये थे अभी तक जो हम लोग कर रहे थे बेसिक क्वेश्चंस। क्या होता है मैं आपको जरा बताऊं, किसी भी कंटेंट को अगर आप पढ़ने चाहेंगे तो उसके अंदर कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जिसके थ्रू हम बेसिक टेक्निक्स ऑफ डूइंग द क्वेश्चन सीखते हैं। या बोल लूंगी ये बेसिक क्वेश्चन है, ये 17, अगर आप 15-16 का पेपर उठाओगे तो ये बहुत ज्यादा नॉर्मल थे, वहां पे बहुत ज्यादा हम लोगों ने अब जहां तक है मोटा मोटा सा सारी टेक्निक, सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह सब सीख लिए। ये नाउ वी विल डू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो कि इंक्लूडेड होंगे सभी टॉपिक्स पर सभी। नाउ हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अचानक से अगर मैं तुम्हें ऐसा क्वेश्चन एकदम दे देता तो तुम्हें एकदम बहुत ज्यादा हैरानी होगी, ये क्या करना है। सो जस्ट हम लोगों ने एक बार अपना बेस बनाया अच्छे से, देन वी आर मूविंग टू द सम
ABCD is a square if the side of AB and CD are increased by 30% and BC and AD are increased by 20% and the area of the resulting rectangle exceeds the area of the square by 1. अब जिसने वो फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा होगा ना वो इसको बहुत आसानी से कर सकता है. या x प्लस वाई वाला भी समझा होगा उससे भी आसानी से कर सकता है. किसी से भी आसानी से कर सकते अगर तुम अच्छे समझो. सिंपल क्वेश्चन है कि आप लोगों के पास एक स्क्वायर है. स्क्वायर की कुछ साइड रही होगी ए और ए. आपने इसको स्ट्रेच कर दिया इसको भी स्ट्रेच कर दिया. इसमें कितना चेंज करा. अब एक बात बताओ सिंपल सा पूछो एरिया कैसे आता है साइड इनटू साइड. आपने इस साइड में कितना चेंज करा 30%. आपने इसमें कितना चेंज करा 20%. तो सिंपल ये x हो गया ये y हो गया. सो फाइनल चेंज कितना आया x प्लस वाई प्लस एक्स हो अपॉन परसेंट. सो 30 प्लस 20 प्लस 30 इंटू 20 अपॉन. सो बेस वही है 50 प्लस 6 दैट इज 56%. When the cost of a petroleum increases by 40%, a man reduces his annual consumption by 20%. Find the percentage change in his annual expenditure on the petrol. चलिए 40% का मतलब हम लोगों ने सीख लिया था क्या. या चलो और सिर्फ उसी से कर दो. एक्सपेंडिचर क्या होता है वही प्राइस इनटू कंजम्पशन. इसको आपने कंजम्पशन को बढ़ाया प्राइस को बढ़ाया कितना 40%. कंजम्पशन को आपने डिक्रीज करा है माइनस का 20%. बस वही x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100. p को बढ़ा लिख दो प्लस का 40 y को लिख दो माइनस का. फिर वही प्लस का 40 माइनस का 20 अपॉन. तो यहाँ आ गया 8 ये आ गया 20 आ जाएगा माइनस 4 2 से 8 आ जाएगा. तो 12% का चेंज आ रहा है. प्लस का आ रहा है दैट इज इंक्रीज हुआ. सिंपल. नेक्स्ट. When the price of a sugar increased by 32%, a family reduced his consumption in such a way that the expenditure on a sugar was only 10% more than before. If 30 kg were consumed per month before, find the new monthly consumption. देखिए जी मैंने उस दिन आपको पूरा समझा दिया था कि ऐसे चलता है कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजम्पशन. When the price of a sugar increased by 32%, मान लो 32%, यानी कि पहले अगर 100 रुपए का था तो अब हो गया है 132 रुपए का. Reduced his consumption in such a expenditure was only 10% more than before. Expenditure अगर पहले 100 रुपए था तो अब वो हो गया है 110. तो बस इनको डिवाइड करना होता है ताकि आप लोगों को कंजम्पशन का रेशियो. तो कंजम्पशन के रेशियो के लिए आप लोगों को क्या करना है यहाँ पर 100 अपॉन 100 इसको 132 तो कट जाएगा यहाँ पर 132 इधर आ जाएगा. तो कंजम्पशन क्या हो गया 132 इज टू 1. काट लो इसको 11 से काटोगे ना तो ये 10 पे कट जाएगा. 11 से काटोगे तो 12 पे. और काट लो इसको ये 5 पे कट जाएगा 6 पे. ठीक है जी. बस 5 6 इज टू 5 आपका कंजम्पशन का रेशियो आ गया. कंजम्पशन का रेशियो आ गया 6 इज टू 5. इफ 30 kg वर कंज्यूम्ड पर मंथ बिफोर. ये पहले वाला केस था ये अर्लियर केस था फर्स्ट केस था ना. पहले आप 100 रुपए खर्च कर रहे थे फिर आपने 110 खर्च करे.
फिर आप पहले 100 रुपए खर्च 100 का प्राइस था, फिर 132 हो गया, सेकंड केस था। तो पहले ये फर्स्ट केस कंजम्पशन, ये सेकंड केस। 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है कि पहले 30 kg खर्च कर दो। तो 6 की वैल्यू 30 kg है, आपको 5 की वैल्यू निकालनी है। तो 6 की वैल्यू 30 kg है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30/6, दैट इज 5। तो 5 की वैल्यू कैसे निकालोगे, 5 into 5 दैट इज 25 kg। जब एग्जाम में जानो तो ये सब मत कर, ये सब मत कर। 6 की वैल्यू 30 तो into 5, 5 की 5 25। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The digit at unit place of a two-digit number is increased by 100%, and the digit at tens place of the same number is increased by 50%. The new number thus formed is 19 more than the original number. What is the original number? Option से भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। नंबर को बनाने का टेक्निक क्या होती है, अगर कोई XY नंबर है तो ये नंबर ऐसे लिखा जाए 10x plus y। 10 डिजिट होती है ना। चलो देखो, तो नंबर मान लो XY है तुम्हारे पास। XY से तुम यहाँ पे नंबर XY मानो, जिसपे टेंस प्लेस है, ये वंस प्लेस। This is your tens place number, this is your ones place, this is your number. How you can make a number? 10x plus 1, this is your number. If the digit at units place of a two-digit number is increased by 100%, आपका y था यूनिट प्लेस पर, आपने इसको 100% बढ़ा दिया, समझे? अभी देखो पूरा लिख के दिखा दो। y plus 100% of y, that is y plus y, it will become 2y. The digit at tens place of the same number is increased by 50%. Earlier it was x, now it is increased by 50%. That is x plus 50/100x. That is 1/2. That is, it has become 3x by 2. So the new number is what? At tens place it has 3x plus by 2, and at ones place it has 2. So what will be the number? What will be the number? 10 into the digit at a tens place plus the digit at a ones place. So 2 5s are 10. That is 5 is a 15x plus 2. This is a basic value. Got my point? Simple. You have to just आपको इन दोनों का difference given है. That is, it is the number formed. The new number formed is 19 more than the original. अब जो आपका नंबर आ रहा है वो आपका 19 ज्यादा आ रहा है. अब आपको कोई सा एक सेम बनाना पड़ेगा इसमें. जैसे यहाँ पे 15x आ रहा है, वहां पर y आ रहा है, तो किसी को भी एक सेम बना लो, उससे आपका डिफरेंस पता चल जाएगा. जैसे अगर मैं यहाँ पे 2y कर दूं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 20x plus 2y. तो इस दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 20x. तो चलो वैसे से करके देखते हैं सिंपल तरीके से. The new number is 15x plus 2y minus old number, that is 10x plus y. The difference is 9. So 15x minus 10x is 5x. 2y minus the y is, that is 5x plus y is. This is a. अब आपको इसको टेंस प्लेस पर लेके जाना पड़ेगा, याद रखना. क्यों? टेंस के टर्म्स में लेके जाना पड़ेगा इसको, क्योंकि नंबर तो आपका ऐसे बनेगा 10 into x plus y. ठीक है जी. तो 5 2 से 10 पे लेके जाना पड़ेगा, इसकी दोनों से मल्टीप्लाई कराओगे, आ जाएगा 10x plus 2y into 38. तो y को आपको सिंपल बनाना पड़ेगा यहाँ पर 2 से, into 2 होगा, दैट इज 38 समथिंग आ रहा होगा ऑप्शन में, किसी में भी यहाँ पर नहीं. दैट इज इतना लंबा करने की वजह, इंस्टेड ऑफ डूइंग सच लेंथी क्वेश्चन, यू कैन डू वन थिंग.
यू कैन डू वन थिंग सिंपली, आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे सिंपल चेक कर सकते थे कि भाई 22, इसको 100% बढ़ा के देख लो, इसको 100% बढ़ाओगे तो दैट इज इसका पूरा एज इट इज बढ़ाओगे तो 40 बढ़ाओगे, इसको 50% बढ़ा के 40, तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है। तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। तो वो चेक करने वाली बात होती है कि आपका कितना पैसा आपको देखना पड़ेगा। Next, in an examination hall in which food mark were 500, A got 10% less than B, B got 25% more than C, C got 20% less than D. If A got 360 marks, what percentage of food marks was obtained by D? आपको सिंपल लगाना है ना, सिंपल लगाना आपको, जो भी आप मतलब वैल्यू लेके कर सकते हो वैसे भी कर सकते हो। देखो, in which full marks were 500, ठीक है, A got 10% less marks than, तो आप लोग को सिंपल 10% A is to B निकाल लो सिंपल अपना। अगर B के 100 मार्क्स आए हैं, B के सपोज करो 100 मार्क्स आए, तो A को 10% कम मिले, 90 मिलाओ, आगे चलो। B got 25% more marks than C, अगर C को 100 मार्क्स मिले हैं तो इसको 25% मोर, दैट इज इसको 125 मिले। C got 20% लेस देन D, अगर D को 100 मार्क्स मिले तो इसको 20% कम, दैट इज इसको 80। अब ये फिर से वही करना पड़ेगा आपको, यू जस्ट हैव टू मेक योर वैल्यू सेम। यहाँ पर देखो 5:C आ गया ना, ये 125:4 आ जाएगा ये, और यहाँ पे आप लोग का ये कितना आ जाएगा, 4:5। सिंपल कट करा, 20 से काट दिया यहाँ पर, इसको 4:5। ठीक है, अब सुनना बहुत ध्यान से, A/B मेरा कितना आ रहा है, मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूँ, B को सेम बना देता हूँ, इसके 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, 10:8 आ जाएगा। मेरी B की वैल्यू सेम आ गई 10 और 10, तो A/C कितना आ जाएगा मेरा, 9:8। सिंपल। और मेरे पास C/D कितना आ रहा था, 4:5। मैं फिर यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करा दूंगा, इट वुड गेट 8:10। तो आप देख लो, तुम C की वैल्यू सेम आ गई तुम्हारी, तो तुम्हारा A/D कितना आ गया, व्हाट इज योर A/D, 9:10। दिस इज हाउ। अब नाउ A की वैल्यू तो तुम्हें गिवन है, ये 360 मार्क्स, तो 9 4 से 36 होता है, इनटू 400 कर दिया, तो D के कितने मार्क्स आए, 400। इफ यू हैव टू फाइंड इट इन द परसेंटेज, दैट इज 400, टोटल मार्क्स कितने थे, 500 इनटू 100, 5 8 से 40, 80%। तो सिंपल अगर आप लोग कर रहे हो तो ज्यादा आसान है। अब वैल्यू मान लो, मैंने कुछ नहीं माना, मैंने 100 मानता चला गया, फिर B को सेम कर दिया, यहाँ पे C को सेम कर दिया, उससे मेरे को इसको D की रेशो मिल गया, खत्म। परसेंटेज से रेशो बना लो तो बहुत इजी हो जाता है। नेक्स्ट, in a competitive examination in state A, 6% candidates got selected from the total appeared candidates. State B had an equal number of candidates appeared and 7% candidates got selected, with 80 more candidates got selected from it. What was the number of candidates appeared from each state? And remember guys, it's very tough war. बहुत मुश्किल है ये, बहुत मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल है ये, ठीक है ना, मतलब जिसको नहीं लग रहा अच्छी बात है, बट ये सब चीजें अडॉप्ट करना, ये टेक्निक्स को अपनी आदत में डालना, मेक इट योर हैबिट टू डू द क्वेश्चंस इन सच अ वे, ये थॉट प्रोसेस डेवलप करना, इट इज वेरी टफ प्रोसेस, वेरी टफ प्रोसेस, एंड यू जस्ट हैव टू मेक इट वेरी कंड्यूसिव फॉर यू बाय रिवीजन, by revising again and again, by be regular in your studies, regular in the classes, continuous in the class. ये बहुत tough है, ठीक है ना, it cannot be generated within a 1 way or 1 day, 2 day or 15 days. It's a very hectic process. You have to be regular about this. And the main point is you are appearing for the CDS like exam, which requires wide level of thought process. आपको बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत सारे लेवल्स पर सोचना पड़ेगा।
In a competitive examination, 6% candidates got selected from the total appeared candidates. State A में suppose करो X number of candidates appear हुए और 6% of X got selected. In a state B में जिसमें भी same number of हुए उसमें से 70% got selected. And the difference given is 80. क्योंकि B में 80% ज्यादा. तो 7% और 6% और 7% 6% का 1% आ जाएगा. 1% of X is 80. So X would be simple. 1000. Next. The salary of a person is increased by 10% of his original salary, but he received the same amount even after the increment. What is the percentage of his salary he did not receive? Salary of a person is increased by 10%. Suppose his earlier salary was 100 rupees. It is increased by 10%. So the new salary is what? 110. But he received the same salary. Salary तो उसको same ही मिली. कितनी? 100 के 100 रुपए. तो कितना पार्ट उसको नहीं मिला? सैलरी 110 हो गई, बट उसको मिले कितने? 100 रुपए. तो क्या नहीं मिला? 10 रुपए नहीं. सो क्या कौन सा पार्ट नहीं मिला? 10 upon 10 upon 110 into 100. So you have not received 100 upon 11%. Next. 50% of X minus Y is equals to 40% of X plus Y. What is the percent of X is Y? देखो simple है. 50% of X, that is 1 by 2. ये इसको 5 50 upon 100 of X minus Y. 40 upon 100 is equals to X plus Y. So everything got cancelled out. 0 0 got cancelled out. 5x minus का 5y, 4x plus का 4y. So here you will get x, here you will get 9. X is y percent. What percent of x? What percent of x is y? That is y upon x into. Y upon x is what? Y upon x. That is 1 upon 9 is equals to y upon x. और 1 upon 9 तब सभी को बताया था मैंने. That is it is 11 by 9. Next, if the height of a cone is increased by 50%, then what is the percentage increase in the volume of the cone? Height of a cone is increased by 50%. That is the radius is same. Radius में there is no change. What is the percentage in then? So volume of the cone is what? 1 upon 3 pi r square h. इसमें कुछ change करा? Pi is constant, 1 by 3 is constant, radius has not changed. तो इसमें कोई change ही नहीं करा. So volume is directly proportional to the height. Height में कितना change करा? 50%. Is increased by 50%. So volume भी कितनी बढ़ गई? 50%. Simple. If they had made any changes in the radius, then we need to calculate. Simple. Next. 38 liters of a milk was poured into a tub and the tub was found to be 5% empty. To completely fill the tub, what amount of additional milk must be poured? Any tub, any quantity will be 100%, 95% fill, and 5% empty. It can be break down into this way. 38 liters of milk was poured into the tub and tub was found to be 5% empty. Means 95% is basically 38. You just have to find this one. So 95% की वैल्यू आपको कितनी गिवन हो गई? 38 लीटर. 1% की कितनी हो गई? 38 upon 95. तो 5% की कितनी हो गई? 38 upon 95 into 100.
19 से काटोगे 2 पे, 19 से काटोगे 5 पे, 19 से काटोगे 20 पर नहीं पूरे कट जाएगा 5% परसेंट भी तो आएगा ना 100 भी तो जाएगा 100 नहीं सही तो जाएगा सही में आ जाएगा 2 to the 4 ही आना चाहिए वैसे हमने इनटू 100 एक से पूछो हम निकालने की इसकी 5 की निकाली थी 38/95 इंटू 5% है तो 5 तो आता है क्या 2 से 5 पर और 5 की 5 2 लीटर Water contains 14 whole 2 by 7% of hydrogen and the rest is oxygen. It is what? 1 by 7. And the rest is oxygen in 350 gram of water. What oxygen will be what? So it's very simple. Water contains of two things. Hydrogen, oxygen. Hydrogen is this one, that is 1 by 7. Hydrogen is 1 by 7. So बचा हुआ कितना रह गया 6 by 7. Simple. ठीक है जी तो कितना रेशियो आ गया हाइड्रोजन और इसका 1:6 सिंपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो आ गया 1:6 तो टोटल कितना हो गया 1 + 6 7 की वैल्यू तुम्हें गिवन है 350 ग्राम्स 1 की वैल्यू कितनी हो गई 350/7 दैट इज 50 ग्राम्स निकालने की इसकी ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या हो गया 6 into 50 दैट इज 300 ग्राम्स Next. To an examination, a candidate needs 40% marks. All questions carry equal marks. A candidate just passed by getting 10 marks correct, getting 10 answers correct by attempting 15 of the total questions. How many questions are there in the examination? देखो a candidate needs 40% marks. A candidate just passed by getting 10 answers correct by attempting 15 of the total questions. How many questions are there in the exam? मतलब क्या इस बार 15 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करके आ गया
हाँ सॉरी गाइस, वो एक्चुअली समथिंग। चलो जी, बैक टू आवर व्हाट वी वर डूइंग। जस्ट हाँ घर जाने से लोगों ने फिर माइक ऑन कर लिया अपने, चैट शुरू कर दी, ठीक है तुम लोगों ने आपस में। एक सेकंड, नहीं नेटवर्क का इशू नहीं है, लैपटॉप पे इशू होता था, लैपटॉप के टक गया था। चलो जी, क्या कर रहे थे हम लोग? हाँ ये मार्क्स पर देना हमको। चलो जी, सो देयर वाज इन एन एग्जाम, there was some number of questions out of which only 15 he attempted. आधे क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट करे, उसमें से उसके 10 ही करेक्ट हुए बस, अनफॉर्चुनेटली 5 इनकरेक्ट हो गए उसके। ठीक है जी, इनकरेक्ट। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर, एक बार बताओ। he got 40%, he needed 40% and he got 40%, candidate just passed, ठीक है ना? So that means 40% of marks can be achieved by 10 questions. Got my point? 40% of the marks can be achieved by 10 questions. So 1% of the marks can be achieved by 10 by 4. If I need to attempt 100% marks, that would be equal to the total number of questions. Na? 40 into that is हो गया आपका सिंपल 400. अगर मैं 25 का 25 सही करके आता तो मेरे फुल 100% मार्क्स आ जाते. Got my point? So this is how you have to do it. So A part answer, that is. By reduction 20% in the price of the oranges, one can purchase 5 oranges more for rupees this. Find the reduced price of the orange per dozen and also the original. Expenditure is equals to price into consumption. इसने लिख करके नहीं दिया है, same question. Expenditure is equals to price into consumption. एक चीज इसने बिल्कुल सेम रखी है, वो क्या है वो तुम्हें देखना. What is same? And it is what? Expenditure. अब तुम लोग करो, बाकी सब सेम. देखो प्राइस में कितना चेंज हुआ है? 20% reduction. 20% reduction means if there was initially 100%, now the 80%, that is 5:4 the ratio they are making. Simple. ये हम लोगों ने पूरा समझ लिया था कि that is 5:4 ratio they are making. Since the expenditure is same, the price is inversely proportional to consumption. So consumption का ratio will be 4:5. ठीक. Difference of the consumption is 1. 4 5 में 1, जो कि बेसिकली कितना है 5 ऑरेंजेस का. सो 1 की वैल्यू 5 है, तो 4 की वैल्यू कितनी रही होगी? 4 into 5 20, 5 into 5 25. सो बस क्वेश्चन खत्म. क्या पहले वो 20 ऑरेंजेस ले रहा था, अब वो 25 ऑरेंजेस. व्हाट इज द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ द ऑरेंज पर डजन? वो अब तुम लोग निकाले लोगे, इसमें कोई बात नहीं. फाइंड द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ द एंड द ओरिजिनल प्राइस, वो तो तुम अब निकाले लो. ओरिजिनल प्राइस कितनी थी भाई? ये 20 ऑरेंजेस पर डजन की बात कर रहा है ना, मतलब पर डजन कह रहा है. तो 20 ऑरेंजेस पहले आप ले रहे थे 2.5 रुपीज के. ठीक है जी, 1 रुपए का कितने लोगे? 2.5 डिवाइडेड बाय 20. हम लोग को पर डजन
निकाल पर डजन, दैट इज 12 के कितने हो जाएंगे 2.5 अपॉन 20 इंटू 12। सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से कर रहे हैं हम, इतने बच्चों की तरीके से तो कोई भी नहीं। ठीक है जी, बस काटाकुटी कर लो। यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 से काटोगे 6, 2 से काटोगे 5, 5 से काटोगे 5, 5 से 2 से काटोगे 5 इज 50, 1.5, 1.5 आगे 1.5। ठीक है जी, बाकी 25 वाले का भी निकाल लो, फिर ऐसे सिमिलर, दैट इज 25 वाले का कितना आ जाएगा 25 फॉर द 2.5 रुपीज। ठीक है जी, तो एक कितने का हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है जी, दैट इज यहाँ पर 12 का कितना हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 12, तो 10 पे कट जाएगा साफ साफ, तो 1. तो सिंपल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन। एक ही कॉन्सेप्ट समझना था, उसी से सारे क्वेश्चन होते चले जाते। An employee is required to contribute 10% of the payment to general provident fund. If he gets rupees this as a net pay in a month, what is the monthly general provident fund contribution? ये तो ज्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं बन गया। ये तो इतनी सैलरी है, इसका 10% देना, तो दे दो 1,350 रुपये। इसमें तो कुछ नहीं था भाई, सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। To contribute 10% of his payment to general provident fund, if he gets rupees this as a net pay in a month, what is the monthly general provident fund contribution? भाई यही आएगा इसमें ना, इन्होंने टाइम नहीं आ रहा, बी पार्ट यार इसका। सी पार्ट कैसा आ रहा भाई, बताना कैसे, मेरे दिमाग से उतर रहा है। धनेंद्र सिंह, तो आज हमें धनेंद्र सिंह जी बताएंगे कि इसका आंसर कैसा है, बताइए बोलो। सर मैंने सेम जिम कर लिया। क्या कर लिया? सर वही जिम कर लिया कि 10% है तो सर 90% ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी। एक सेकंड, नेट पे है, वाह भाई, देखो सही कह रहे, बिल्कुल सही पकड़ा, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेट पे मतलब ये कटने के बाद मिल रहा है ना, ये इन हैंड है इनका, और सीटीसी है तुम्हें निकालना। ठीक है ना, इन हैंड सीटीसी तो तुम लोग समझते होंगे, तुम लोग तो प्लेसमेंट वाले ग्रेजुएट बच्चे हो। ये 90% है इनका, 90% 135, ठीक है ना, 13,500। तो 10% इनका कट के आ रहा होगा ना कुछ, तो बस अपॉन 90 इंटू 110, तो बस काट तो 15 पे कट जाएगा। वेरी गुड, चलो 1500 नेट पे है ना। देख रहे हो, ये लैंग्वेज के खेल होते हैं सारे, लैंग्वेज में तुम्हें फंसा देगा and you will get fall there. A man loses 20% of his money after spending 25% of the remaining. Yeah, if he has 480 left, what is the amount of the money he originally had? Suppose he had originally X rupees, loses 20% of his money, that is now he is left with 80%. ठीक है, after spending 25% of the remaining, this is the remaining one. इसका 25% he had spent, so he is left with 75%, which is given equal to 4. चलो सिंपल क्वेश्चन, 4 पे कट गया, 5 पे कट गया, 25 से 3 पे कट गया, 5 पे, 4 3 से 12, 12 से ये 4 पे कट जाएगा, 5 5 से 25, और 25 4 से तो 100 पे चले जाएंगे। What the mistakes with those? 3 से 4 पे जाएंगे, सॉरी 3 से 4, 25 3 से 25, 3 से 25, 5 4 से 20 and 24 से 80, that is 800 rupees. Next, A is equals to 10% of X, B is equals to 10% of Y, C is equals to 10% of X plus 10% of Y. On the basis of the above equalities, what is the true in the following? तो मैं A B B A को कंपेयर करना बेसिकली,
एक बात बताओ, ये आ जाएगा x अपॉन 10, 10% है ना, तो x अपॉन 10, b इज इक्वल टू y अपॉन 10, c इज इक्वल टू व्हाट, 10% कॉमन ले लोगे, सो 1 अपॉन 10 ऑफ x प्लस y. You have to find the relationship between a and b. How you will find? There's no way to find. Why? देखो, relation between a and b depends upon the relation between x and y. And there is no equation given out of 3 which defines the relation between x and y. So the relation cannot be established. Must question. The ratio of the salary of worker in July to that of June was this. What percent of salary of July more than the salary of June? Also find what percentage of salary of June was less than that of June. Let me show you how to calculate. 2 2s are 4, 4 plus 1, 5 by 2. It's a very basic math of 4th class of 5th class, I guess. 4 2s are 8 plus 1, 9. 9 by 4. This is the salary of July is to June. Just make it simple. Multiply by 4. So you will get 5 से 2 कट जाएगा, 5 2s are 10, और 9 2s are, नहीं 9 2s 18 तो कटोगे, 9. So first question. Salary of July more than that of June. Salary of July more than that of June. Plus 1. How much is in the percentage? 1 by 9. 1 by 9 is clearly, we all know, 11, 1 by 9%. Second question. Salary of June less than that of July. Salary of June less than that of July. Minus 1. Percentage में जाओगे तो 1 upon 10 into 100. That is 10%. Simple. Next. In measuring the side of a square, an error of 5% in excess is made. The error percentage in the calculated data. Okay. Now if you do it by simple values rather than this 100, it would be very easy. Why? 5% को आप लिखोगे ना जब 5 upon 10, 100. So make it simple, 1 by 2. Why I am doing this? Old side is 20. New side is what? 20 plus 1, that is 21. Old area is what? 20 ka square. Area of a square is what? 20 ka square. That is 400. What is the new area? That is 21 ka square. That is 484. Simple. So what is the error? 84 is your error. So if you find in the percentage, 84 upon original area, that is 4 upon 400. So this will get 21, not 24. So simple, ये तो आ गया 21%. 21% कौन सा? 4 10 से 40 plus 1 41. किस पे काटोगे? 4 से काट 484 पे थोड़ी लेंगे. 21 का स्क्वायर 441. अच्छा 441 का, sorry. चलो, you guys are very sharp. 41 है ना, 22 का होगा ना, 484 हो जाती है यार. हम लोग भी और सारे मेरे से तो बहुत होते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक्स में से बहुत. तो 0 से 0 कट गया, 41 upon 4. तो 41 upon 4 तो फिर आएगा 10 1 by. चलो. On a certain date, Pakistan has a success rate of 60% against India in all the ODIs played between the two countries. They lost the next 30 odd ODIs in a road to India, and their success rate come down to 30%. The total number of ODIs played between the two countries. We all have to think. So think.
पाकिस्तान का सक्सेस रेट चल रहा था इतना और वो 30 नेक्स्ट ओडीआईज हार गए एंड देयर सक्सेस रेट कम्स डाउन टू 30%. करो यू गाइस डू, आई एम कमिंग. अभी तो है टाइम, ठीक है ना, कोई क्लास थोड़ी तुम लोग बस कर रहे बस खत्म ना लोग. चलो जी, अब इसको कर लेना तुम, एक आधा क्वेश्चन तो कर लो, ठीक है, सोच लेना, नहीं हो तो मुझे बताना. तो ये 2 क्वेश्चन तुम लास्ट में ले लो, सोचना इनके ऊपर. वैसे पीडीएफ में गिवन है सॉल्यूशन, बट पहले खुद एफर्ट करना फिर देखना सॉल्यूशन. चलो जी, नाउ वी विल मीट अप ऑन टुमारो, दैट इज फॉर योर प्रॉफिट क्लास 1. डोंट मिस द फर्स्ट क्लास. सारे बेसिक कॉन्सेप्ट टेक्निक जितनी भी होती है हम फर्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं. यूजुअली हैपेंस 10 में होता है कि मैं आपको बताऊं, जनरली बच्चे प्रेफर वाचिंग रिकॉर्डिंग्स, ठीक है ना, तभी देखो क्लास में से कम होते चले जाते हैं. क्योंकि अब तुम लोग भी, तुम्हारी क्या गलती, 3 बजे बैठे तुम बेचारे जीके से, जीके इंग्लिश मैथ तक आते आते सब खत्म. जैसे रियल एग्जाम में भी ऐसे होता है, 3 बजे तक बच्चे खत्म रहते हैं, आधे बच्चे 3 बजे मैथ कर रहे, ठीक है ना. जस्ट मेक श्योर यू गाइस गो इन द स्मूथ मैनर. तुम्हारी रिकॉर्डिंग्स भी देख रहे हो तो उसको देखते रहो कंटिन्यूअसली, रेगुलरली. Make sure notes are going proper and the things are going proper. This is all. See you tomorrow. Thanks.